Assalamualaikum guys, welcome to the fourth episode of Tech Talks. Amna, am I audible? Am I audible? So, welcome to the fourth episode of Tech Talks. In this episode, we are going to learn the basics about UI, UX, and Figma. So, can I have the next slide, Amna? Amna, next slide, please. So, I am Faik Ahmed Khan, Executive Graphics at Cybersecurity Club NUST. With me is Amna Ahmed, Executive Human Resource at Cybersecurity Club NUST. We are the session moderators for this session. Hope this session goes well. So, next slide. So, first of all, what is Cybersecurity Club? Now, as we know, with the modernization of whole world, the world of crime is also unfortunately modernizing. So the crimes have gone online all over the world. So if you don't know about the threats of online world and you don't know how to stay safe from them and you don't even have a viable resource to learn about them and you are not knowingly being a victim to those cybersecurity attacks, so you are at the right place to learn about them. On the next slide. Here at Cybersecurity Club, our motives are to enable a secure environment, to empower people with the latest technological trends, to allow you to know the weakness of your design from where the cybersecurity attacks may happen, and to set a basic path for those who want to pursue the field of cybersecurity. Now, I'll hand over the session to my co-moderator Amna Ahmed. Uh, Assalamu alaikum everyone. Am I audible to you? Yes, Amna, you are audible. Okay. So moving on our next slide. Our co-host for this tech talk is IEEE SEEKS and IEEE WIE SEEKS. IEEE is Institute of Electrical and Electronics Engineering. It's a SEEKS NUST-based club. NUST chapter of World Organization. It's dedicated to advanced technology, innovation, and excellence. Also, it is dedicated to promote the women engineers to excel their professional skills. And it's innovation for a better tomorrow. Now coming towards the topic of today Tech Talk, it's introduction to UI, UX and Figma. User interface design commonly defined is the process of designing and visual look of product, the functionality of the interaction. In this activity, students will be introduced to the user experience, user interface design, the role of designers and the design process. Hope you will get a lot of knowledge here. Coming forward to the instructor of the session, we are honored to have here with the most suitable instructor for this session, Muhammad Ubaidullah. He is a work featured by TechJuice, currently Associate Designer at Venture for Pakistan, UI UX Design Intern at Minerva and Edvis Solution, and last but not the least, Level 2 Seller at Fiverr. We are honored to have you, sir, here. And I expect that a lot of or that audience will be disciplined, that there are some rules for the tech talk. Don't turn on your mics. Secondly, write the questions in the chat for the question and answer session. Thirdly, in case of any issue or question, you can raise your hand. Don't turn on your mics. And we will have a separate question and answer session at the end, so don't panic, just raise your hands and write the questions in the chat box. Thank you so much. That's from our side. Handing over the control to our instructor. We hope that you will have a great opportunity here. Thank you. Thank you, Amna, and thank you, Faik. Am I audible to everyone? Yes, Suved, you're audible. And can you guys see my screen? Yes, it's visible. All right. Firstly, thank you, Cybersecurity Club and IEEE SEEKS for giving me this opportunity to speak to you guys and talk about the user experience, user interface, and Figma in specifically. So
We'll start by my introduction. I am Mohammad Ubaidullah. I am currently a software engineering student at SEEDS in my final year, and I'm working as an associate designer at Venture for Pakistan. I call myself a UI UX designer and a brand designer. So in my experiences and achievement, I have done internships at Minerva and Advis Solutions. And apart from that, I also do brand designing at Fiverr, where I am a level 2 designer. Some of my feature works includes Nust mobile app. Hopefully, some of you have seen it on TechJuice. TechJuice featured it. And one more thing that I did was a UX case study on WhatsApp back in June, which got over 28,000 plus reach and 650 plus reactions on LinkedIn. That was my brief introduction. So starting off with the presentation. So today's workshop will include two basic things. Firstly, there is a small presentation about UX and UI and about Figma. And then we'll move on towards the real hands-on experience of Figma. So we'll start from introduction, then we'll see the tools for UI design. Then we'll go to the introduction of Figma. Then we'll see what is ideation phase in Figma project, how to set up a project in Figma, and eventually we will design a landing page in Figma. And eventually we'll learn how to export our resources and hand over to the developers. And in the last, we'll have a small QA session. Introduction to UX and UI. So if I define UX in one sentence, then I would say that it is the art of making the user's life easy. Now, the UX is beyond the scope of just softwares and applications. It can be applied to any physical product, or it can be applied to any real life product. So anything that makes a user's life easy is a part of UX. So you are developing your product. It could be either a website, or it could be a mobile app, or it could be any physical product. Like for example, you are designing a water bottle. So and everything you do in order to make the experience of user better for that bottle, or for that software, or for that mobile app, that will be all included in the UX part. So you do UX through engineering, through design, through designing a process, or through anything, right? So it is not only about the graphic design, right? It is about anything that makes the user's life easy. So in today's modern world, specifically in 2020, we cannot ignore the importance of the UX. So see, आप अपना product बना सकते हो, ठीक है? You have an idea today, you can convert it into an app or into a product, ठीक है? Product बनाना कोई अब मुश्किल नहीं रहा. In 2020, it is very easy to make anything. But what makes the difference is the user experience. Let's say आप आज एक product बनाते हो, कल उसकी 20 कॉपीज और निकली होंगी, राइट? सो जहां पे आप डिफरेंस मेक कर सकते हो, where you can make a difference is where you can make your product efficient and easy to use for the user. So that is where you can make a difference and excel in the competition. Now, when I talk about UI, so I'll be talking about specifically software-based UIs. So see, we can do UX through a lot of things, and one of those things is through design. So the UI part falls under this category. So when you are developing a UI, you are basically improving the UX through design. So UI is basically the art of designing visual interface of a product. So anything visual, right? It could be a text. You can do it through text, through pictures, through icons, or through anything visual, literally anything visual that the user eye can see, or which really makes an impression on the eyes. So that is all included in the UI part, and any buttons, any pictures, and stuff like that. Moving on to the relationship between UX and UI. So
you see, UI is a part of UX. UX is a very broader field, and UI is one of the vital part of UX. What other parts does UX have? Let's see. We have user interviews, like you interview users and get to know what problems they are facing, right? What expectations do they have from your product? And then you define user journeys. You define user journeys, the journey a user will take with your product to achieve a certain goal, right? You define the content strategy, like what content do I have to show on my screen, on the website or on the mobile app, and where does that content will go. So that is included in content strategy. These all fall under the UX part, right? So when you're defining these things, you are actually molding the experience of your product. Then there is site mapping, which is basically the navigation that your app or your website will have. So what navigation will a user take to attain a certain goal? And then we have wireframes. Wireframes are basically sketches. These are very high fidelity rough sketches, which basically tells that where your content will go on a page, not how your content will look like, but where it will actually go. So we are not talking about UI and wireframe. We're just talking about the position of content. And then there is UI. So UI is one vital part and one of the many parts of UX. So when we say that UX of our product is not good, so we cannot be specific that it might be due to the UI problem. It can be due to site mapping problem. It could be due to the content problem. It could be due to the wrong wireframes or confusing site mapping. Right. So, but when you are talking about a bad UI, so that directly means that you have a bad user experience. But having a bad user experience doesn't mean that you have a bad UI. I have seen many UIs which are astonishingly great, but they have a very confusing UX part there. So you might have seen a lot of new neomorphic designs and whatnot on Dribbble, right? So those all designs are great, right? But we cannot evaluate their UX based on how they look. So the UX is evaluated by specifically by doing user testing and stuff like that. Moving on. Here are some bad examples of bad UX. So if you see on the left side of the screen, we have customer car parking. Right or left? I mean, this is confusing, right? So customer car parking is right or on the left? Which arrows shows the customer car parking and which arrows shows the deliveries, right? So there is a clear confusion and hierarchy of arrows and text, which makes it very confusing, right? And if we talk about the UX in software, so if you see on the example in the middle, we have please enter your phone number, and the input fields we have are drop downs, right? So it would be very bad experience if we just open the drop downs and search for our number. And it could have been a number input, right? Like normally we do have in our apps, like we can just enter number. That is far more easy. So this is one example of a bad UX in software. And on the right side, if you see, like there's a very cute mug, right? It looks very cute, but when practically saying, if you see in bottom picture, it practically it fails because it just goes into your eyes, man. So the UI here, if we talk about in analogy term, the UI of this mug is very cute, but actually it fails in the practical world because the UX is not good. So these were some examples. Let's keep this session a bit interactive. Here's a pop quiz for you guys. There are two examples basically. So there's a confirm delete option. So that asks you if you want to delete something or not.
So there are two options. Excuse me, sir. Sir, sorry to interrupt you. Can we switch to bilingual so that everyone can understand well? Like you are incomplete English. Can you? Thank you so much, sir. ठीक है. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं जहाँ पे कंफर्म वो पूछ रहा है कि आपने कोई कंटेंट डिलीट करना है या नहीं. कंफर्म डिलीट पूछ रहा है. सो आई हैव टू एग्जांपल्स हियर. एक में देयर इज डिलीट बटन इन ग्रीन एंड देयर इज दूसरी में द डिलीट बटन इज इन रेड वन. So can someone from you tell me which has a bad UX and which one has a right UX? You can comment in the chat box. So most of the audience is supporting red one as a good UI. Right, very well. You सबने ठीक बताया वैसे. Yes, the right one is the right UX and the left one, the green one, is the bad UX. The reason, अच्छा अब यहाँ पे reason ये है कि color plays a vital part in the UI, ठीक है, and UI plays a vital part in the UX. So color is directly affecting the UX of a product. तो normally जो हम लोगों ने सीखा है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से वो यही है कि जो नेगेटिव पार्ट चीज़ होती है या फिर जो कैंसिल करने के लिए कुछ भी एनीथिंग लाइक दैट जो भी इस तरह की चीज़ होती है वो यूजुअली रेड से रिप्रेजेंट की जाती है. एंड जो पॉजिटिव एंड अच्छी चीज़ होती है वो हमेशा ग्रीन से रिप्रेजेंट की जाती है. सो व्हेन एवर वी हैव सीन द डिलीट ऑप्शन और एनीथिंग लाइक दिस किसी भी सॉफ्टवेयर में तो वो मोस्टली रेड में होता है. So अगर वो green में कर देते हैं, let's say we use this left example in our applications and products, तो it will create a clear confusion कि let's say कुछ यूजर होते हैं जिनको like who cannot read or who cannot understand the English language, तो उनको बस यही पता होता है कि green is like a positive thing और the red is the negative thing. If you मतलब अगर आप delete को green कर देंगे तो वो यूजर्स तो प्रोबेबली उसको अच्छा समझ के क्लिक कर देंगे एंड इट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग. सो यू सी कलर कैन प्ले इन अ वाइटल पार्ट इन द यूआई एंड इवेंचुअली द यूएक्स. मूविंग ऑन, टूल्स फॉर यूआई. हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं यूआई डिजाइनिंग के लिए. अच्छा, हियर आई विल नॉट टॉक अबाउट फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर वगैरह, उनमें भी लोग पहले करते रहे हैं डिजाइन, बट नाउ वी हैव स्पेसिफिक टूल्स फॉर यूआई डिजाइनिंग. We have Figma, this one. We have Adobe XD. We have Sketch, which is specifically on Mac OS, Apple के लिए. And then we have InDesign. InDesign is basically more focused towards interaction designing, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एडवांस किस्म की प्रोटोटाइपिंग की ज़रूरत होती है. But as a whole, I really prefer working in Figma. And उसकी reasons हम अभी देखते हैं. So today we'll be mostly talking about Figma, and this is what this whole workshop is about. Intro to Figma, right? So ये कुछ चीज़ें हैं जो कि Figma को stand out करवाती हैं. So the number one is free of cost, मतलब बहुत सारे features इसके free of cost आपको मिल जाते हैं, आपको pay नहीं करना पड़ता. इनके पेइंग वाले भी प्रोफेशनल प्लान्स भी हैं, बट उसके लिए वो बहुत एंटरप्राइज लेवल पे जाके होते हैं. सो पर्सनली अगर आपको यूज़ करना है तो फिग्मा से बेहतर आई डोंट थिंक सो अभी कोई क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है. एक्सेसिबिलिटी, सो नो इंस्टॉलेशन नीडेड. आपने क्या करना है, जस्ट figma.com लिखें, ओपन होगा, ऑनलाइन सारा कुछ है. देयर इज नो डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है. So it is accessible to everyone. हर किस्म के प्लेटफॉर्म पे चल जाता है, either it is Windows और Linux और Mac OS, किसी पे भी चल जाएगा. रियल टाइम कोलैबोरेशन,
आप इसमें करते हैं कि यू कैन ऐड योर टीम्स, यू कैन ऐड योर टीम मेंबर्स, 2 या 3 तक आई गेस फ्री में अलाउड है, एंड उससे ज़्यादा आप लोग आई गेस पे करना पड़ता है, बट यू कैन ऐड रियल टाइम कोलैबोरेशन पार्टनर्स जो कि एक ही फाइल के ऊपर आपके साथ मिल के काम कर रहे होंगे अपने लैपटॉप पे बैठ के। सो द फाइल विल बी ऑनलाइन पड़ी होगी, ठीक है, एंड दोनों लोग अपने अपने लैपटॉप्स पर एक ही फाइल पे काम कर रहे होंगे। Then we have interactive prototyping. Interactive prototyping में ये है कि you can make different interactive prototypes जो कि clickable हो सकते हैं, and Figma is actually including a lot of more options. अभी इनकी 2 दिन पहले ही एक update भी आई है, so they have included 1 or 2 more options. So they are pretty focused towards improving their product. Sharing with different permissions, you can share your file किसी के साथ भी और different permissions के साथ। So आप उनको सिर्फ viewing access भी दे सकते हो, आप उसको उनको edit access भी दे सकते हो, और आप उनको admin भी बना सकते हो। So बहुत सारे options हैं हमारे पास जब when it comes to sharing. देन यूजर टेस्टिंग, जब आप प्रोटोटाइप बनाते हो तो आप अपने यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हो, और जब आपके यूजर्स उसको यूज कर रहे हैं प्रोटोटाइप को ऑनलाइन, तो यू कैन एक्चुअली रियल टाइम में आप देख सकते हो कि वो कौन सी चीज को कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, कब क्लिक कर रहे हैं। सो दैट मीन्स आप उसको रियल टाइम में ऑब्जर्व कर सकते हो कि मेरा यूजर्स किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है मेरे प्रोडक्ट, मेरी यूआई के साथ। रियल टाइम मोबाइल प्रीव्यू, फिग्मा मिरर नाम है इसका। इट इज़ बेसिकली मोबाइल ऐप जिससे आप करते हो कि यू कैन व्यू योर प्रोटोटाइप डायरेक्टली ऑन योर मोबाइल ऐप। आपने मोबाइल के लिए कोई यूआई बनाई है, आप अपने मोबाइल पे फिग्मा मिरर ऑन करो एंड अपनी यूआई को डायरेक्टली मोबाइल के ऊपर उसको देख लो कि आपके मोबाइल के ऊपर कैसी लगती है। सो आई रियली लाइक दिस फिग्मा मिरर वाली चीज़। आई हैव पर्सनली यूज इट एंड काफ़ी मज़े की चीज़ है ये। एंड देन वी हैव इजी हैंड ओवर टू डेवलपर्स। सो डेवलपर्स के लिए भी इसके अंदर बड़ी मजे की चीज़ें हैं। सो आप शेयर कर सकते हो डेवलपर्स के साथ, डेवलपर आपकी फाइल खोल सकता है, उसको सिर्फ आप लाइक व्यू परमिशन दे सकते हो, वो आपकी फाइल खोल सकता है, वहाँ से आपकी सारी रिसोर्सेज ले सकते हैं जो कि उसको डेवलप करने के लिए चाहिए, वो वहाँ से कोड भी दे सकता है। सो कोड असिस्टेंस भी है, दैट इज कोड असिस्टेंस। फिग्मा प्रोवाइड्स कोड स्निपेट्स, जो कि आपने यूआई बनाया होता है फिग्मा, उसकी कोड स्निपेट्स भी प्रोवाइड करता है फॉर ऑल एंड्रॉयड भी, iOS भी, एंड वेब की CSS और HTML वगैरह भी प्रोवाइड करता है। So this is the landing page that we are going to design today in Figma. It's basically a mobile a music app website जैसे Spotify है। So the idea is कि it will be a landing page of music website जहाँ से जाके you can either tune in through web, और या फिर आप डाउनलोड कर सकते हो मोबाइल ऐप के लिए। सो यूआई मैंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं रखी। सो आई वाज प्लानिंग कि मैं इसके अंदर प्रोटोटाइपिंग भी करवाऊंगा, इंटरेक्टिव प्रोटोटाइपिंग बटन्स की। सो आई होप वी फाइंड द टाइम फॉर टू डू दैट। ऑलराइट, सो व्हाट आई नीड यू गाइस टू डू नाउ इज, आप लोगों को सबको एक ईमेल आया होगा साइबर सिक्योरिटी क्लब की तरफ से या फिर IEEE की तरफ से। सो उसके अंदर डिज़ाइन रिसोर्सेज होंगी, फाइल होगी .rar फाइल। आप आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आप अभी कर लें। आप उसको उसके अंदर से डिज़ाइन रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करें, उनको एक फोल्डर में रख दें, ठीक है। एंड जो लोग फॉलो अप करना चाह रहे हैं मेरे साथ वो फॉलो अप कर सकते हैं, एंड अगर नहीं करना तो इफ यू कैन जस्ट टेक नोट्स एंड आई विल बी डिजाइनिंग a UI from scratch. Open figma.com, and I hope you guys have extracted the files. Right, I'll give you a minute or two for those who are following me कि आप अपनी डिज़ाइन रिसोर्सेज सारी एक्सट्रैक्ट कर लें एक फोल्डर में, then we can move on to the ideation phase.
सर ये ईमेल्स वाला दोबारा से एक दफा कर दें। Can someone confirm me कि मैं present कर रहा हूँ ना इस time? Is my screen shared? Yes. Yes. Let's see. All right, should we get started now? I guess we should, because हमने एक UI भी design करनी है पूरी, and that will take some time. Those of you who are all Figma already, so this will be जो front page जो आप login करने के बाद that you will see after you log in into your account. Make an account free में बनता है, so यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट सिस्टम शायद ना हो, बट what you can do is you can click on this plus icon and it will create a new project for you. I have my project here. I'll just open this. Right, so this is what you will see when you open a new file in Figma. So starting off with थोड़ी सी Figma की मैं चीज़ें बता दूँ आप लोगों को. So left side पे if you see there is this pages and layers panel. Pages होता है कि I can have मैं मल्टीपल पेजेस जहाँ पे भी मैंने 2 पेजेस रखे हुए हैं. सो एक ये बिल्कुल न्यू पेज है, पेज 1, पेज 2 जो न्यू है, एंड पेज 1 पे मैंने अपनी UI डिज़ाइन की हुई है. सो यू कैन हैव मल्टीपल पेजेस एंड हर पेज के अंदर यू कैन हैव मल्टीपल फ्रेम्स. नाउ आपके जो एक पेज होता है UI में, लेट्स से वी कॉल इट मोबाइल की स्क्रीन या फिर वेबसाइट की स्क्रीन, तो वी कैन कॉल इट अ फ्रेम. ठीक है, तो यहाँ पे लेयर्स में वो सारे फ्रेम्स आ जाएंगे और आपकी सारी लेयर्स आ जाएंगी. राइट साइड पे अगर आप देखें तो देयर आर 3 बेसिक मेन टैब्स. एक तो डिज़ाइन है जिसमें सारी डिज़ाइन प्रॉपर्टीज़ होंगी. विल सी देम एक एक करके क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर. देयर इज दिस प्रोटोटाइप टैब जहाँ पे आप प्रोटोटाइपिंग प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हो. विल सी दैट जब हम प्रोटोटाइपिंग में आएंगे. एंड देन देयर इज दिस एक मिनट सर, कैन यू वेट फॉर अ व्हाइल. एक लिंक चैट में पेस्ट हुआ हुआ है, तो जिसके पास सोर्स फाइल्स नहीं है वो वहां से काइंडली डाउनलोड कर ले उसे. सर थोड़ी देर के लिए वेट करने ताकि सब डाउनलोड कर लें. 1 or 2 more minutes.
Right, I guess we should continue now. I hope आप लोगों ने resources डाउनलोड कर ली होंगी and उनको extract कर लिया होगा. And by the way, the resources में एक स्टार्ट कर. Yes, क्या हुआ? Right, I was saying कि resources में यहाँ पे एक font भी होगा Poppins के नाम से. So उन सबको भी आप लोग इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम्स पे. उसको जस्ट एक्सट्रैक्ट करें एंड सेलेक्ट ऑल और उसके बाद राइट क्लिक एंड इंस्टॉल. Right, let's get started now. So I was saying कि राइट साइड पे जो हमारे पास पैनल आते हैं यहाँ पे डिज़ाइन, प्रोटोटाइप एंड इंस्पेक्ट. इंस्पेक्ट में ये है कि आपके पास डिफरेंट लेयर्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स का आपको CSS, इसके अलावा iOS एंड एंड्रॉयड का कोड भी मिल जाएगा, कोड स्निपेट्स. दिस इज फॉर स्पेसिफिकली डेवलपर्स या फिर दोज हु आर आल्सो इंटरेस्टेड इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट. वो दे कैन एक्सपेरिमेंट इट फ्रॉम हियर. राइट, टॉप पे अगर हम आए तो देर इज दिस मूव टूल. मूव टूल करता ये है कि जस्ट आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो, चीज़ों को मूव अराउंड कर सकते हो एंड एवरीथिंग लाइक दिस. स्केल से आप चीज़ों को बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो. विल कम टू दिस लेटर. अब पहले ये देख लेते हैं हम. डू हैव रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल, लाइन, एरो, एक्लिप्स जिससे आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. पॉलीगॉन से आप डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हो इंक्लूडिंग ट्राइंगल, हेक्सागोन, इस तरह की चीज़ें, पेंटागन. स्टार से आप डिफरेंट स्टार डिज़ाइन कर सकते हो. एंड प्लेस इमेज से एज इट सेज कि आप इमेज प्लेस कर सकते हो. देन वी हैव पेन टूल एंड पेंसिल टूल. पेंसिल भी स्केचिंग की तरह होती है एंड पेन टूल जिस तरह इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप में होता है, आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हो यूजिंग द पेन टूल. So this is the pen tool. Then we have text tool. इसे आप text लिख सकते हो. Hand tool से आप अभी नज़र नहीं आ रहा, let me show you here. Hand tool से आप move around कर सकते हो अपने canvas पे कहीं पे भी. इससे select कुछ नहीं होगा, change कुछ नहीं होगा, आप बस आराम से move around कर सकते हो. कमेंट टूल ये होता है कि आपने कमेंट करना हो किसी चीज़ के बारे में, लेट्स से ये ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पर आपने खुद अपने आप को कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, कहीं आपने कोई टिप लिखनी हो अपने लिए कि बाद में आप उसको देख के खोल के देखो तो आपको कुछ याद आ जाए. एंड या फिर व्हेन यू हैव टीम्स वर्किंग ऑन सेम प्रोफाइल तो आप अपने कमेंट वहाँ पे ऐड कर सकते हो. तो उससे दूसरे मेंबर्स को पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या करना है. सो आई कैन जस्ट ऐड अ कमेंट कि रीडिज़ाइन UI एंड आई कैन जस्ट पोस्ट इट इस तरह. तो दैट मीन्स के पेज 1 पे देयर इज वन कमेंट टुडे के रीडिज़ाइन द UI और वो बेला से मैंने किया है. राइट. देन ओवर द टॉप हमारे पास यहाँ पे प्रोफाइल का आइकन है.
we have this share button and a play present button basically. शेयरिंग से होता है ये कि मैं ये पूरी फाइल किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ ना। मैं किसी का भी ईमेल यहाँ पे लिख सकता हूँ एंड आई कैन सेलेक्ट द परमिशन कि वो व्यू की परमिशन पे हो या एडिट की परमिशन पे हो, और मैं जस्ट उसको ईमेल से ऐड कर सकता हूँ और वो या तो व्यू कर सकेगा या एडिट कर सकेगा डिपेंडिंग ऑन कि मैं इसको क्या सेलेक्ट करता हूँ। इसके अलावा आई कैन कॉपी द लिंक। अगर मैं लिंक कॉपी करूँगा तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि एनीवन विद द लिंक कैन व्यू या कैन एडिट, तो वो जिसके पास भी लिंक जाएगा उसको वो परमिशंस उस फाइल की मिल जाएंगी। और आई कैन गेट एन एम्बेडेड कोड। एम्बेडेड कोड मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और अपनी वेबसाइट्स वगैरह में कहीं भी मैंने जहाँ पे अपनी प्रोफाइल को एम्बेड करना होगा इस प्रोफाइल को, तो वो वहाँ पर एम्बेड हो सकता है। देन वी हैव दिस प्रेजेंट टूल। प्रेजेंट से होता है ये आप प्रोटोटाइप को प्रेजेंट करते हो। सो अब ये UI है, इसको अलर्ट से मैंने अपनी देखना है कि मेरी स्क्रीन पे कैसा लगेगा, तो आई विल जस्ट प्रेजेंट इट और थोड़ा सा लोड होगा ये एंड दिस विल अपीयर लाइक दिस। Okay, this is how it's going to look on my screen जब ये डेवलप हो जाएगा। तो आप इसके साथ यहाँ पे इंटरेक्टिव अगर प्रोटोटाइपिंग है तो आप वो भी देख सकते हो। सो राइट नाउ आई हैव ये बटन्स भी हैं जिसके जो इंटरेक्टिव हैं थोड़े से। सो आई विल सी अगर टाइम बचा तो आई विल इनको भी प्रोटोटाइपिंग में शामिल करूँगा मैं। So this was the present option. All right, let's start the UI now. के लिए एक सेकेंड। So the first step that we are going to follow is ideation. अब ideation क्या होती है? Ideation होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने UI के बारे में आइडियाज कलेक्ट करते हो और आप ब्रेनस्टॉर्म करते हो कि आपका एट द एंड आपका प्रोडक्ट कैसा लगना चाहिए। सो इसके अंदर बेसिकली व्हाट आई डू इज़ कि मैं कंटेंट डिफाइन करूँगा कि मैंने कंटेंट क्या लिखना है, ठीक है, क्या कंटेंट शो होना चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर। देन आई विल उस कंटेंट के मुताबिक मैं वायर फ्रेम्स बनाऊंगा। इसमें फिर दूसरे UX के पार्ट्स भी आ जाते हैं, साइट मैपिंग एंड दूसरी चीज़ें, बट वो अभी इस वर्कशॉप का स्कोप नहीं है, सो आई विल नॉट गो देयर। बट इवेंचुअली आप वायर फ्रेम्स बनाते हो जिसमें यू डिफाइन के अच्छा ये कंटेंट स्क्रीन पे राइट पे जाएगा, ये लेफ्ट पे जाएगा, ये टॉप पे, ये बॉटम पे, एंड थिंग्स लाइक दिस। एंड देन यू डिफाइन द मूड बोर्ड। मूड बोर्ड क्या होता है? मूड बोर्ड बेसिकली डिफाइन करता है आपका पूरी आपके जो प्रोजेक्ट की या UI का जो वाइब होती है ना, मैं वो डिफाइन करता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे ये वायर फ्रेम मैंने बनाया है हमारे इस UI के लिए, जो आज हम UI डिज़ाइन करने लगे हैं। सो उसका वायर फ्रेम ये। सो इसमें बस मैंने ये डिफाइन किया है कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। इसमें ये कुछ भी डिफाइन नहीं है कि विजुअली वो किस तरह की लगेगी या उसका कलर क्या होगा या इस तरह की कोई भी चीज़ें डिफाइन नहीं है। इट्स जस्ट टेल्स कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी। सो आई हैव अ नेव बार और कंपनी लोगो, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, पूरा एक नेव बार है। एक इमेज यहाँ पर राइट पे, कंटेंट, हेडिंग, कैप्शन एंड अ कॉल टू एक्शन बटन यहाँ बॉटम पे आ गया। एंड देन आई हैव सेम थिंग लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इमेज यहाँ पे है एक, हेडिंग, कैप्शन एंड बटन्स यहाँ पे। एट द एंड मेरे पास फुटर है जिसके अंदर अगेन कंपनी लोगो एंड लिंक्स अगर कुछ ऐड करने हैं तो वो। सो दिस इज द बेसिक वर्जन ऑफ वायर फ्रेम के, जो डिफाइन करेगा कि मेरी UI के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ जानी चाहिए एट द एंड। मूविंग ऑन टू द मूड बोर्ड। मूड बोर्ड क्या डिफाइन कर, मूड बोर्ड ये डिफाइन करता है कि आपकी ओवरऑल UI का जो सा वाइब है या फिर उसकी फील है वो किस तरह की होनी चाहिए। सो मैंने यहाँ पर डिफरेंट इमेजेस इकट्ठी की हुई हैं, आइकन्स इकट्ठे किए हुए हैं, मेरे पास टाइप ये फॉन्ट है, कलर्स हैं। तो इसके अंदर ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो कि आपका एक मूड डिफाइन करती हैं। लेट्स से अब मैंने यहाँ पे पिक्चर्स बहुत सारी यूज़ की हुई हैं, म्यूजिक से रिलेटेड पिक्चर्स हैं, थोड़ी पर्पलिश शेड है, ब्लू शेड है। आइकन्स जो मैंने यूज़ किए हैं वो फील्ड आइकन्स हैं, लाइक
आउटलाइन नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट में जो आइकॉन्स यूज़ हो रहे हों वो फिल्ड आइकॉन्स यूज़ हो रहे हों, आउटलाइन ना हो, इमेजेस यूज़ हो रही हों मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, फॉन्ट जो है वो मैंने ये रखा हुआ है कि इस तरह का फॉन्ट हो, एंड देन वी हैव कलर्स के मैं इस तरह के कलर्स चाह रहा हूँ कि मेरे जो है उसमें आ जाए मेरी जो फाइनल यूआई में इस तरह के कलर्स, क्योंकि मेरी वाइब इस तरह की बन रही है, पर्पलिश रेड और ब्लूइश सी, थोड़ी सी ब्लैक, इस तरह की वाइब रखना चाह रहा हूँ मैं अपनी वेबसाइट की। तो मूड बोर्ड सारा ये डिफाइन करता है कि मेरी ओवरऑल फील क्या होगी वेबसाइट की। अब एक डिफरेंट फील ये भी हो सकती थी कि मैं बिल्कुल ग्रीनिश और बहुत लाइट से कलर्स यूज करता, तो वो उसकी बिल्कुल डिफरेंट मूड बोर्ड बनता, जिससे इवेंचुअली एक बहुत डिफरेंट किस्म की यूआई बनती। सो मूड बोर्ड आपके अपने क्लियरिटी के लिए होती है कि मैं अपने विजन क्लियर कर लूं कि एट द एंड मेरा प्रोडक्ट किस तरह की फील होनी चाहिए उसकी। तो ये हमारा आ गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मूड बोर्ड साइड। The next step that we're going to do is defining the specifications. और specifications में क्या होती है? Specifications में आप technical details थोड़ी सी define करते हो, जो कि rules होते हैं, कह लो आप rules define कर लेते हो शुरू में कि ये rules हैं, ठीक है, इन rules के मुताबिक मैंने अपनी UI को डिज़ाइन करना है। वो कुछ ground rules होते हैं आप जो खुद डिफाइन करते हो, और वो बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है ऐसा, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की UI बनाना चाह रहे हो, एंड इवेंचुअली आप उसको किस तरह का दिखना चाह रहे हो। आप डिफरेंट लेआउट्स भी फॉलो कर सकते हो, डिफरेंट डिज़ाइनर्स डिफाइन करते हैं अपनी स्पेसिफिकेशंस को, आप उनको फॉलो कर सकते हो, या आप अपनी कोई खुद की बना सकते हो स्पेसिफिकेशन। सो विल सी दैट के हाउ डू वी डू दैट। अब डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस में इफ़ यू सी हियर आई हैव डिफाइंड दिस स्पेसिफिकेशंस अपनी UI बनाने से पहले। सो इट टेल्स कि मैंने पॉपिन फॉन्ट यूज़ करना है, ठीक है। इट टेल्स के मैंने हेडिंग 1 जो भी हेडिंग्स होती हैं, अगर आप में से कोई वेब डेवलपमेंट करता है तो ही नोज के H1 H2 H3 HTML में हेडिंग्स होती हैं, एंड हमारी हायरार्की डिफाइन करती हैं सारी हेडिंग्स। तो लेट्स से मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ कि मेरी हेडिंग 1 36 पिक्सल होगी, राइट। तो मेरी हेडिंग 2 सेमी बोल्ड होगा, 30 पिक्सल होगी। हेडिंग 3 मेरी 24 पिक्सल होगी, सेमी बोल्ड, एंड हेडिंग 4 18 पिक्सल होगी, एंड मेरा पैराग्राफ 16 पिक्सल का मीडियम वेट के साथ होगा। सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इफ़ यू सी द ट्रेंड, तो मैंने एक ट्रेंड यहाँ पे फॉलो किया हुआ है, लाइक 36 30 24 एंड 18। तो ये 6 के डिफरेंस से, like 18 plus 6 24, 24 plus 6 30, 30 plus 6 that makes 36। तो इसका सारा मकसद ये होता है कि आपकी कंसिस्टेंसी आती है डिज़ाइन में, एंड आपकी एक हार्मनी होती है डिज़ाइन में, मैथमेटिकल हार्मनी होती है आपके डिज़ाइन में, राइट। तो अगर आप इस तरह की स्पेसिफिकेशन रखोगे जो मैथमेटिकली एक दूसरे अलाइन होंगी या मल्टीपल्स होंगी एक दूसरे के, तो दैट विल इवेंचुअली लुक गुड, राइट। और मेरा पैराग्राफ टेक्स्ट, अच्छा मैंने पैराग्राफ टेक्स्ट 16 पिक्सल रखा हुआ है, एंड आई एम गोइंग टू डिफाइन कि मेरा जो पूरी वेबसाइट, पूरे मेरी वेबसाइट पे जहाँ पे भी सबसे छोटा तरीन टेक्स्ट होगा वो 16 पिक्सल होगा, इससे छोटा मैंने टेक्स्ट यूज़ नहीं करना, राइट। तो आप ये डिफाइन कर देते हो यहाँ पे। उसके बाद आपने जहाँ पे भी अपनी वेबसाइट में जो लीस्ट सबसे छोटा फॉन्ट साइज आप यूज़ करोगे वो 16 करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे अपना 16 रखा हुआ है। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी 18, ठीक है, इट कुड बी 14, ठीक है, डिपेंड करता है। अच्छा, कुछ स्पेसिफिकेशन होती हैं जो गूगल की तरफ से आती हैं, जैसे कि आपका 14 होना चाहिए, लेट्स से सबसे छोटा फॉन्ट, और एप्पल की डिफरेंट होंगी, एयरबीएनबी की अगर स्पेसिफिकेशन आप देखो तो वो डिफरेंट होंगी, आप अपनी डिफरेंट डिफाइन कर सकते हो। तो आप किसी को फॉलो कर सकते हो, किसी डिज़ाइन ट्रेंड को, या अपना खुद बना सकते हो। सो काफ़ी डिज़ाइनर 16 यूज़ करते हैं, सो आई प्रेफर यूजिंग 16 व्हेन आई एम डिज़ाइनिंग फॉर वेबसाइट्स एंड वेब। देन मैंने 3 कलर्स चूज़ किए हैं, फाइनलाइज किए हैं इसी मूड बोर्ड के अंदर से। सो मैंने सब कलर्स सारों को चूज़ करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं 2 या 3 से ज़्यादा अपने नहीं डिफाइन करूँगा कलर्स, बिकॉज डिज़ाइनिंग की एक बहुत एक बहुत बेसिक चीज़ है कि कलर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना डिज़ाइन इनकंसिस्टेंट और इतना ही बुरा बनता है, अनलेस कोई बहुत
एक्सेप्शंस हों जहाँ पे आर्टिस्टिक डिजाइनिंग की आप बात कर रहे हो, वो नहीं, बट इफ़ यू आर डिजाइनिंग समथिंग क्लीन एंड मिनिमल तो 2 या 3 से ज़्यादा टेक्स्ट कलर्स तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए। एंड उसके बाद अच्छा, अब काफ़ी जगहों पे ना ये चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं आपके ब्रांड से। लेट्स से मैं किसी कंपनी के लिए बना रहा हूँ ये वेबसाइट, ठीक है, तो मुझे फिर कलर्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे टाइप फेस प्रॉबली शायद डिफाइन करने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग में उनके पास एक टाइप फॉन्ट होगा, ठीक है, उनकी ब्रांडिंग का एक कलर होगा, ठीक है, उनकी एक ब्रांडिंग की ऑलरेडी एक मूड बोर्ड उनकी ब्रांडिंग का होगा। आइदर वो इलस्ट्रेशंस यूज़ करते हैं अपनी ब्रांडिंग में, अपनी दूसरी चीज़ों में, या वो पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं, उनके आइकॉन्स अगर वो कहीं यूज़ कर रहे हैं तो वो किस तरह के आइकॉन्स यूज़ कर रहे हैं। तो अगर उनके पास इस तरह की पहले कोई चीज़ें डिफाइंड हैं तो मैं फिर मूड बोर्ड नहीं बनाऊंगा, आई विल जस्ट यूज़ जो कि उनकी ब्रांडिंग से अलाइन कर रहा होगा, राइट। तो मैं उन अपने से मतलब सोच के मैं डिफरेंट चीज़ नहीं बनाऊंगा, मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि उनकी ब्रांडिंग से अलाइन हो रहा होगा। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैंने कलर्स चूज कर लिए कि दीज 3 कलर्स आई विल बी यूजिंग इन माय प्रोजेक्ट। स्पेसिंग्स मैंने कुछ डिफाइन कर लिए हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस में इतना रखूंगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में 24 रखूंगा, हेडिंग एंड पैराग्राफ में 32 डिस्टेंस रखूंगा, वर्टिकल स्पेसिंग में 48 बटन्स टेक्स्ट के दरमियान रखूंगा, हॉरिजॉन्टल में इस तरह ये सारी डिस्टेंस भी मैंने डिफाइन की हुई हैं 6-7। तो मैं ये पहले से कुछ रूल्स डिफाइन कर लूँगा, राइट। उसके बाद लेआउट। अब लेआउट होता है कि आप में से अगर कोई डेवलपमेंट करता होगा तो यू नो कि बूटस्ट्रैप के बारे में पता होगा आप लोगों को। बूटस्ट्रैप यूजेस अ 12 ग्रिड लेआउट सिस्टम। अब उस 12 कॉलम ग्रिड यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ कि क्या होता है। विद अ मार्जिन ऑफ 100 एंड गटर ऑफ 24। अब मैं इसका मतलब आपको बताता हूँ। सो इट टेल्स के मेरा जो भी स्क्रीन होगी, मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, इट विल हैव 12 कॉलम्स, ठीक है, 12 कॉलम्स होंगे। आपको यहाँ पे बहुत लाइट नज़र आ रहे होंगे इस टाइम, ठीक है। ये 12 कॉलम 12 ग्रिड कहलाते हैं, ठीक है, 12 कॉलम 12 ग्रिड सिस्टम, राइट। सो मेरा जितना भी कंटेंट होगा वो इन 12 कॉलम्स के अंदर अंदर होगा, ठीक है, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। एंड जो मार्जिन मैंने आपको बताया था ऊपर, मार्जिन 100 पिक्सल्स, वो मार्जिन डिफाइन करता है कि लेफ्ट एंड राइट पे कितनी स्पेसिंग होगी हमारी 12 कॉलम्स के अंदर, बाद जो लेफ्ट एंड राइट की स्पेसिंग होगी वो कितनी होगी। एंड गटर क्या होता है? गटर होता है कि आपके ये 12